let's continue with exercise 2.3. This is sum number 6. In sum number 6, there are two workers, that is worker P and worker Q. The mean time for completing the job in hours, मतलब average time job complete करने के लिए P वर्कर को 33 आवर्स लगते हैं, Q वर्कर्स को 21 आवर्स लगते हैं. स्टैंडर्ड डिविएशन 9 आवर्स एंड 27 आवर्स. फाइंड करना है. फर्स्ट फाइंड करना है कि दोनों वर्कर्स में से which worker is more consistent. कौन सा वर्कर काम करने में ज्यादा कंसिस्टेंट है. कंसिस्टेंसी किसमें ज्यादा है? कंसिस्टेंसी ज्यादा मतलब पहले फाइंड करना पड़ेगा वेरिएशन, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. सो आई राइट दिस इज x bar of worker P, this is x bar of worker Q, this is standard deviation x, standard deviation of worker P, this is standard deviation of worker Q. Okay ना? Okay? चलो पहला coefficient of variation of worker P, CV निकालेंगे. coefficient of variation, the formula is standard deviation upon mean into 100. Standard deviation of worker P is 9 upon 33 into 100, that is equal to 900 upon 33. 3 11s are 3 300s are, so it will be 300 upon 11, so 11 2s are, it will be somewhere 27.27, ऐसा कुछ आएगा. Next, CV of worker Q, that is standard deviation upon mean into 100. Standard deviation, this is not 27, this is 7. 7 upon 21 into 100. Let me check, this is 21 or 27. This is 21 upon, बराबर ना? 700 upon 21, that will be somewhere around 33.33. Okay? So वेरिएशन वर्कर P का 27 है, मतलब वर्कर P का वेरिएशन 27 है और वेरिएशन वर्कर Q का ज्यादा है. So coefficient of variation of worker P is less than coefficient of variation of worker Q. P का वेरिएशन कम है, P का वेरिएशन बदलाव कम है, P का वेरिएशन कम है, बदलाव कम है. That means worker P is more consistent than worker Q. Hope you understand. कम है ना, तो कंसिस्टेंसी ज्यादा है. वेरिएशन कम है मतलब कंसिस्टेंट ज्यादा है, बदलाव कम है मतलब कंसिस्टेंसी ज्यादा है. नेक्स्ट हु इज फास्टर? कौन फास्टर है? P फास्टर है कि Q फास्टर है? एवरेज टाइम टू कंप्लीट द जॉब ऑफ P, that is 33 hours, is greater than average time to complete the job of Q, that is 21 hours. अरे बराबर ना, वर्कर P 33 घंटे में कंप्लीट करता है काम, लेकिन वर्कर Q 21 घंटे में खत्म कर देता है. इसको टाइम ज्यादा लगता है, तो फास्ट कौन है? P को टाइम ज्यादा लगता है. That means that is worker Q is faster than worker P. बराबर ना, because time required is less, उसको कम टाइम लगता है तो वो faster है. Easy. Next question says that there are two departments in a company. Suppose they are department A and department B. Department A has 42 employees and department B has 60 employees. The average wages which they are paying is rupees 750 and this is rupees 400. Standard deviation is also given. We are supposed to find first which department is paying a larger wage bill. कौन सा डिपार्टमेंट ज्यादा वेजेस के ऊपर खर्चा करता है? डिपार्टमेंट A
में 42 लोग हैं, 750 का पगार है एवरेज। डिपार्टमेंट बी में 60 लोग हैं और 400 रुपए का पगार है। सो हाउ टू फाइंड द लार्जर बिल, कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। नाउ लार्जर बिल फाइंड करना है, बराबर ना। सो दिस इज एवरेज फर्स्ट डिपार्टमेंट ए, ओके। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 42 और एवरेज एक का पगार है 750, तो टोटल पगार कितना देते हैं? टोटल वेजेस पेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनटू एवरेज कितना पेमेंट देते हैं वेजेस। सो 42 एम्प्लॉइज इनटू 750 दैट विल बी समवेयर अराउंड 31,500। कितना पगार देते हैं एवरेज, बोलो, मतलब पूरे साल में जो भी है। डिपार्टमेंट बी सिमिलरली टोटल वेजेस पेड विल बी, कितने एम्प्लॉइज है 60, कितना पगार देते हैं 400, तो पगार देते हैं लोग 24,000 रुपीज। तो कौन ज्यादा पेमेंट दे रहे हैं? टोटल वेजेस पेड by department A is more than department B, तो लार्जर बिल डिपार्टमेंट ए का है, बी का नहीं। ओके, आगे चलते हैं। लार्जर वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी मींस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। होप दिस इज क्लियर। सो फर्स्ट विल बी डिपार्टमेंट ए, Department A, CV. What is standard deviation? 8 upon mean is 750 into 100. 25 3s are 25. Sorry, 5. 5 1s are 5. 5 5s are 25. 5 2s are 10. That will be 8 2s are 16 upon 15. That will be around 1.07 somewhere. 1.07. Okay. Now talking about department B, CV, coefficient of variation, standard deviation is 10 upon mean is 400, 10 upon 400 into 100, that is equal to 2.5. So ये 2.5 और ये 1.07, so I can write 2.5 is greater than 1.07. Variability इसका जाता है। So department A is more variable in payment of wages, बराबर। या तो तुम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, A वेरिएबल ज्यादा है ना तो B कंसिस्टेंट, डिपार्टमेंट B is more consistent। अरे बराबर है। The next question is calculation of coefficient of variation. Now mind that this is also a simple question, ये तुम लोग कर सकते हैं, बट फिर भी करके देता हूं। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है वो तुम लोग कर देना, बिकॉज जो फॉर्मूला मैं यहां पे यूज करने वाला हूं वही तुम लोग यूज करना। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, द फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। सो वी नीड व्हाट? स्टैंडर्ड डेविएशन, वी नीड मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन, तो पहले मीन फाइंड करते हैं। दिस इज क्लास इंटरवल एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन फिर से एक बार लिखो, क्लास फ्रीक्वेंसी। नाउ आई विल प्रिपेयर x कॉलम। x मींस मिड वैल्यू 25 35 30 40 50। नाउ fx का टोटल, fx का टोटल 8 3s are 24 240 4 4s are 16 160 8 5s are 40 400 400 500 600 700 800। ओके, फ्रीक्वेंसी का टोटल इज 8 8 16 16 20। सो आई विल राइट मीन इज इक्वल टू 30 और थोड़ा टेबल बनने का बाकी है। मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ fx अपॉन n, दैट इज 800 अपॉन 20 दैट इज इक्वल टू 40, बराबर ना। तो मीन मालूम पड़ेगा 40 इनटू 100। अभी क्या ढूंढना है? स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए क्या चाहिए? fx स्क्वायर
fx square, that is fx into x. So 24 3 is 72, 7200, 3 4 1207, बराबर ना. 16 4 is 64, 6400, 5 4 is 20,000. So 20 plus 7 is 27, 27 plus 6 33,600. अरे बराबर ना. Okay. Now, what is the formula of standard deviation? Standard deviation is nothing but square root of variance. Square root of variance मतलब summation of fx square upon n minus mean square. So summation fx square, that is 33,600 upon n, that is 20, minus mean is 40 square. 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 0, 4 4s are 16, 16, root 80, standard deviation, root 80 will be somewhere 8.944, ऐसा कुछ आएगा, लॉग टेबल में आएगा, जरा चेक कर सकते हो तो कर लो, जिसको है जिसका लॉग टेबल वो लोग चेक कर सकते हैं. सो स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया, मीन आ गया. सो स्टैंडर्ड डिविएशन इज 8.944, बराबर. ये डिवाइड करेंगे सो यू विल गेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 22.36 समवेयर. अरे क्लियर क्या? इजी. मतलब ये तुम लोग कर सकते हो, मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करके स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन और फिर सीवी, बराबर ना. तो इसके बाद वाले सम में भी यही करना है. एक्स कॉलम दिया है, एफ कॉलम दिया है, वही करना है. उसके बाद वाले सम में वेरिएशन कौन सा है, कंसिस्टेंट कौन सा है पूछा है, वो भी तुम लोग कर सकते हो. ओके.